This PowerPoint is visible. PowerPoint is visible. Yes, sir. Yes, sir. So this example we have seen in last lecture. Now take another example. Write down this numerical. The weight of bale is 163 kg. If trash content of that is 3.5%, is the weight of trash. The weight of trash. The weight of bale is 163 kg. If trash content of that is 3.5%, what is weight of trash? So we know the formula how to find out the weight of trash. This is very simple numerical. You calculate and tell me the answer. How much is the trash content? Weight of trash content? Is the answer? In this way, we have to solve this numerical. You will get the answer. Weight of trash will be 5.7 kg. 5.7 kg. कुछ डिफिकल्ट था नहीं, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए ना. 163 kg के 3.5% ट्रैश है. सिंपल. दैट इज कॉमन लॉजिक. इतना सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं थी. 163% के 163 kg के 3.5% क्या है? ट्रैश है. डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि आपने परसेंटेज लिया है. डिवाइड बाय 100 कर दो, विल गेट द आंसर. आया क्या सबका आंसर? 5.7 kg आया.
ये देखो, अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही आगे आगे चला जाऊंगा, मुझे क्या मैथमेटिक्स पढ़ाना है, झट 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 मैं आगे जाऊंगा, आपको समझा नहीं समझा मुझे कैसे पता चलेगा। अब वेट ऑफ लिंट निकालना है आपको, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ लिंट। तो वेट ऑफ ट्रैश जो है वो टोटल वेट में से अगर हम माइनस कर देंगे तो लिंट आ जाएगा, क्योंकि रहता क्या है बेल में, लिंट एंड ट्रैश। लिंट मतलब अपना कॉटन, प्योर कॉटन, और उसके साथ ट्रैश रहता है, तो ट्रैश अगर माइनस कर देंगे तो लिंट आ जाएगा। सो 163 minus weight of trash, you will get the weight of lint. Weight of lint. So weight of lint is 157.3 kg. चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसमें टाइम गंवाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जा रहा है? जस्ट होल्ड। Now we'll see how to calculate non-fibrous material. So these are non-fibrous material: oil, fats, waxes, sizes, and resins. All these are non-fibrous material. During handling, during manufacturing of material, right? Uh, Unfortunately, these foreign materials will come along with this. So sometimes we have to calculate, required to calculate these uh, non-fibrous material. So there is a way to calculate non-fibrous material. Suppose the mass of the non-fibrous material is m. We consider that the weight of non-fibrous material is m, small m, right? And suppose a fiber portion what we have with us is taken as own dry mass, right? And consider it will be capital M with the suffix of D, right? Now, how to calculate non-fibrous material? Again, this is very simple type of numerical. Suppose if we have non-fibrous material M, right? Non-fibrous material, weight of non-fibrous material M, and we know that total mass of material. So that is direct relation where we can able to calculate this non-fibrous material. So this is the equation. This is the equation by which we can able to calculate the non-fibrous material. So you write down this formula: non-fibrous material in percentage is equal to m by md expressed as percentage. And this is very simple basic concept. If our textile material regain the moisture, right? So in that case, the formula will modify like 100 m divided by 100 plus r into md. So if in numerical, if it has been given with the moisture regain values, then you have to use this formula. Sometimes you have to calculate the non-fibrous material by considering both own dry mass of the material plus whatever non-fibrous material you are extracting. Then at that time you have to make the addition of both non-fibrous material plus the extract what you are taking out from the material. So when you do this, md plus m means what? Your own dry mass plus extract, right? And this is your extract.
So whenever in examination, if they ask for calculate the non-fibrous material by considering one dry mass of fiber plus its own mass, means its extract, then you have to use this formula. Non-fibrous material percentage is equal to 100 m by md plus m. If you do the condition for your sample, in that case you have to use this formula. This formula and this formula is almost same. Here this mass is not conditioned mass. Here the mass is conditioned. That is the only difference. So now non-fibrous material, in this case we can able to calculate by using 100 m by capital M. 100 m by capital M. So these four formulas we can use to calculate the non-fibrous material. Now we'll see one numerical. This is the numerical. A sample of processed wool is extracted in a Soxhlet extractor. Soxhlet extractor is a instrument where you actually try to extract this non-fibrous material from our textile material. Here textile material is wool. The mass of extract is 0.39 grams, means whatever you have extracted, the mass of that is 0.39 grams, and one dry mass of material after extraction is 8.26 grams. Then calculate the percentage of non-fibrous material. Right? Here you calculate this by using one dry mass plus its own mass by this method. Right? By which method you have to calculate? One dry mass plus extract. Which formula you will use then? Tell me which formula you will use? Percentage of non-fibrous material. Which one? Non-fibrous वाला. कौन सा था वो non-fibrous वाला? सभी non-fibrous वाला ही है. उसमें से कौन सा? ओन ड्राई मास के लिए है ना सर? 100 into m upon m4 plus 16. 100 into m upon md plus 100 into m upon md plus m. This is one dry mass plus its own mass of extract. So that is small m. The mass of extract is m, small m, and one dry mass is capital MD. So this formula you have to use. Use this formula. 100 into small m is what? Here it is 0.39 grams. 0.39 grams. And one dry mass is 8.26 plus extract is 0.39. इसका आंसर बताओ. 4.5. 4.5%. 4.5%. 4.5%. 4.5%. Okay, you're right. 4.5% is the answer. 4.5%. राइट. आंसर बराबर है. तो एग्जाम में कौन सा भी मेथड से आ सकता है, वो आपको मेथड फाइंड करना पड़ेगा. सिंपल है एक्चुअली. कुछ भी दिया नहीं है, खाली मास दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया है,
तो नॉन फाइब्रस मटेरियल 100 m/md करके भी निकल सकता है। अगर उन्होंने रिगेन वैल्यू दिया है तो 2 नंबर का फॉर्मूला यूज करने का, समझ में आता ही है। अगर उन्होंने बोला कि ये ऐसा रिगेन है वूल फाइबर का, तो कितना मास नॉन फाइब्रस मटेरियल, तो रिगेन वाला फॉर्मूला यूज करने का। अभी जो मैंने लिया वो मास प्लस एक्सट्रैक्ट वाला लिया, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। इफ अगर वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि कंडीशनड मास ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब है लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है वो पढ़ के फॉर्मूला यूज करना है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप जा नहीं रहा हूँ इसमें, क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है इसमें। ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही करते हैं कैलकुलेशन, खाली टेक्सटाइल को ही लागू है ऐसा नहीं है। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं इसको डीप में लेके नहीं जा रहा। तो आई होप कि आपको ये सारे आते होंगे पहले से ही, बट जस्ट आई एम टेकिंग द रिविजन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स as these numericals are involved or included in your syllabus. Okay, so I have 4.5 is right answer. Just give a minute. Okay, now we'll see the numerical based on qualitative analysis of fiber mixture. अभी आपको सपोज क्या है कि यान दिया आपके पास और बोला कि ये ब्लेंड है और ब्लेंड को पहचानो और कितना परसेंट है बताओ। पहचान अलग बात है, कितना परसेंट है ब्लेंड बताओ पूछा। आपको बताया गया है कि ब्लेंड कॉटन विस्कोस का है या कॉटन पॉलिस्टर का है, ये आपको बताया गया है। आपको मालूम है कि पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड है यान, और पूछा कि इस यान में कितना ब्लेंड प्रोपोर्शन यूज किया है। फैब्रिक दे दिया, पूछा कि वार्प का ब्लेंड प्रोपोर्शन बताओ, वार्प में पीसी यूज किया है, राइट, पॉलिस्टर कॉटन, तो ब्लेंड परसेंटेज बताओ। देन हाउ यू विल कैलकुलेट द ब्लेंड प्रोपोर्शन, हाउ विल कैलकुलेट द ब्लेंड प्रोपोर्शन, आप मुझे बताओ दिमाग लगा के कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। एक कॉमन थिंकिंग लगा के मुझे बताओ कि कॉटन यान, सॉरी एक यान दे दिया जो ब्लेंड है, पॉलिस्टर कॉटन है, और हमने पूछा कि आपको कितना परसेंटेज पॉलिस्टर है इसमें और कितना परसेंटेज कॉटन है, तो कैसे कर सकते हैं लॉजिकली। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि जो आपने सेकेंड ईयर से पढ़ा उसको खाली आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं पाते हो, ये देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है टेक्सटाइल मैथमेटिक्स कुछ मैं नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट में। ये पूरा चीज़ें आपने सीख चुके हैं पहले ही, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टेक्सटाइल की। खाली उसको अप्लाई करना है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स यू कैन से। मुझे खाली कॉन्सेप्ट बताओ, मुझे क्या आंसर डिप में नहीं चाहिए कि एग्जैक्ट कैसे है वो, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा। सर वो सॉल्वेंट में पुट करना होगा, क्या करेंगे, सॉल्वेंट वगैरह में पुट, वेरियस सॉल्वेंट वगैरह में पुट करेंगे सर। ओके। तो
उससे क्या होगा, सॉल्वेंट में अगर हम पुट करेंगे, उसको डिप करेंगे, हाँ, तो क्या होगा उससे? जो कॉटन है, जो कॉटन है वो सोल्यूबल होगा, और जो पॉलिस्टर है वो इनसोल्यूबल होगा, मतलब कोई डिप हो जाएगा उसमें। ओके, कौन सा भी एक सोल्यूबल होगा। यस सर। तो उसके बाद फिर बराबर है, बताओ ना, आप तो सही ट्रैक पे है, बताओ। एक सोल्यूबल हो गया, कॉटन होगा या पॉलिस्टर होगा, जरूर नहीं कि कॉटन ही होगा, हम पॉलिस्टर को भी कर सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं हर बार कॉटन ही होगा। Sir, हम्म, so then the both fibers will sustain some losses in their mass. both fibers sustain Small losses in their mass. that is fine, that वो तो हम देखेंगे उसको। आपने जो बताया वो थोड़ा सा आगे वाला बताया, उसको हम देखेंगे, जो मासेस जो लॉस होता है उसका क्या करेंगे। एक ओवरऑल पूछ रहा हूँ मैं, ओवरऑल मोटा मोटी हम कैसे निकालते हैं, सोल्यूबल होने के बाद सर उसको डिटर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन करेंगे मतलब कौन सा फाइबर सोल्यूबल हो गया है, कौन सा इनसोल्यूबल हो गया है, वो चेक करेंगे। अपने को तो प्रोपोर्शन चाहिए ना, अपने को पता है वो फाइबर कौन सा है, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि पॉलिस्टर कॉटन है। यस सर। हाँ, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है नहीं, पॉलिस्टर है या कॉटन है, इसीलिए तो एक उसमें से हमने डिजोल्व किया ना। आपने किस बेस पे बोला कि कॉटन को डिजोल्व किया, आपको कैसे पता चला कि उसमें कॉटन है? अपन पॉलिस्टर कॉटन लेना। तो ऐसा नहीं है, कौन सा भी फाइबर हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो अपने को एक्चुअली पता है, कंडीशन इज व्हाट वी नो दैट व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इट इज, वो यान में कौन सा फाइबर यूज किया अपने को पता है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर हमने कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर हमने कर लिया है। अब वो कितना परसेंट में है वो निकालना है, यस सर। वो कितना परसेंट में वो निकालना है। तो सिंपल लॉजिक, आप जा रहे थे बराबर ट्रैक पे, बीच में आके अटक गए। सोल्यूबल हो गया तो ये क्या करेंगे, सोल्यूबल हो गया उसके बाद क्या करेंगे? परसेंटेज डिफरेंस निकालेंगे Sir, उसका। हाँ, बताओ बताओ कुछ तो। sir, हाँ, sir. After putting the material in the solvent, the one will dissolve in it, and right. then uh, then we'll determine the mass, the material which is dissolved or undissolved, Okay, we and have to then determine the by mass. Okay, then yes, and then the original mass, the original mass will give the percentage which we have to calculate. right, exactly. So what we do actually, initially we take the sample, right? So we know the weight of the sample because we want to calculate the percentage, how much percentage of fiber is there. Now percentage of fiber, it means what? What about I'm talking? Right? I'm talking about the weight, right? How much weight is there of cotton? How much weight is there for polyester, right? So what you have to do first, you have to take first a sample, then you know the sample very well, you know the sample of polyester cotton. It means what? Either I can dissolve polyester or I can dissolve cotton. Okay, that is fine. Initially you have to take the weight of sample because you want to calculate the proportion, weight of the samples, weight of the fibers available in the sample, right? So for that it is needed to calculate the weight of the sample. So you just weigh it and you have a weight with you now, say for example x gram, right? Now what is second step? You have to dissolve either cotton or polyester. So what happen if you dissolve cotton, you are with you now polyester, right? Now what you have to do, you have to take that polyester because cotton is dissolved, now it is not with you, polyester is with you now. You just dry it, that polyester, and take a weight, take a weight.
So you have a y gram of weight, right? And that y gram is of polyester. You know the total weight of the sample, so you can do the calculation very easily. Y by x into 100. So you got the proportion of polyester. Now you have to calculate the proportion of cotton. It is very simple. 100 minus weight of polyester, because total proportion will be 100%, obviously. Total proportion will be 100%. So you have calculated the polyester percentage, proportion of polyester. So you just minus the proportion of polyester from the 100. You will get the proportion of cotton, that is soluble component. So that is the simple concept used here. Now we'll see, हम यहाँ पे देखते हैं अभी कैसे होता है वो. तो डिसोल्यूशन मेथड से हम फॉर्म इसको फाइंड कर सकते हैं. सिंपल है, डिसोल्यूशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए अपने को सॉल्वेंट्स लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अपने फाइबर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं. कभी पॉलिस्टर कॉटन आएगा आपके लैब में, कभी कॉटन विस्कोस आएगा, कभी एक्रिलिक पॉलिस्टर आएगा, कभी एक्रिलिक कॉटन आएगा, कभी सिल्क पॉलिस्टर आएगा, कभी सिल्क कॉटन आएगा. तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से सॉल्वेंट्स लगते हैं कौन कौन से फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए. तो सॉल्वेंट मेथड से हम जाएंगे, सॉल्वेंट डिसोल्यूशन मेथड से. अभी मान के चलो कि a blend is consist of K and T. Just hold on, I have one call, just hold. ओके. तो यहाँ पे अभी मान के चलते हैं कि ब्लेंड है अपने पास और फाइबर के है और फाइबर टी है. ब्लेंड का फाइबर क्या है, के है और फाइबर टी है. जस्ट होल्ड, आई विल मेक अ स्लाइड शो. फाइबर के है एंड फाइबर टी है एंड वी सिलेक्ट द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द फाइबर टी. अब टी को हम डिसॉल्व करेंगे, तो टी को डिसॉल्व करेंगे मतलब ये हो गया सोल्यूबल, ये हो गया सोल्यूबल और के बच जाएगा, इसका मतलब है इनसोल्यूबल. ये हो गया इनसोल्यूबल. ये दो वर्ड हम यूज करने वाले, इनसोल्यूबल कंपोनेंट एंड सोल्यूबल कंपोनेंट. तो यहाँ पे टी सोल्यूबल कंपोनेंट हो गया.
राइट। तो सबसे पहले सिंपल मेथड से अगर अपने को सपोज प्रोपोर्शन निकालना है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक कंपाउंड को हम सोल्यूबल कर देंगे तो इनसोल्यूबल बच जाएगा, तो इनसोल्यूबल का हम वेट ले लेंगे, राइट। सपोज वो वेट है R, रेसिड्यू का मतलब क्या है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल कंपोनेंट। तो इनसोल्यूबल कंपोनेंट का वेट है R, स्मॉल r, दैट इज 1 ड्राई मास एक्चुअली। और जो हमने सैंपल लिया था जिसमें K और T दोनों थे, उसका वेट हो गया W, राइट, मास ऑफ द टेस्ट सैंपल इन 1 ड्राई स्टेट, राइट। तो ये टोटल मास है अपना W, स्मॉल w, और जो सोल्यूबल हो गया कंपोनेंट, जो बचा वो रेसिड्यू बचा, उस रेसिड्यू का वेट है स्मॉल r। तो सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं R बाय W, R बाय W, बस R बाय W इंटू 100। ये क्या निकल के आया आपको, इनसोल्यूबल कंपोनेंट का परसेंटेज निकल के आया। से मान के चलो कि वो है P0, वो है P0। तो इनसोल्यूबल कंपोनेंट K का परसेंटेज आपको P0 निकल के आया R बाय W इंटू 100। तो सोल्यूबल क्या बन जाएगा, सोल्यूबल क्या बन जाएगा, सिंपल मैंने आपको बताया था 100 में से क्या करना है आपको, इनसोल्यूबल कंपोनेंट परसेंटेज निकालना है। तो 100 माइनस P0 विल बी योर सोल्यूबल कंपोनेंट, विल बी योर सोल्यूबल कंपोनेंट, ओके। तो एक मेथड हो गया। अब होता क्या है, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, व्हेन वी आर प्रोसेसिंग दिस, देयर विल बी अ फाइबर लॉस, क्योंकि हम सैंपल को हैंडल कर रहे हैं, तो उस हैंडलिंग में कुछ फाइबर लॉस हो जाएगा आपका, कुछ फाइबर लॉस हो जाएगा। तो फाइबर लॉस हम कंसिडर करेंगे, फाइबर लॉस को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फाइबर लॉस तो दोनों में होने वाला है, क्योंकि हम सैंपल को हैंडल कर रहे हैं, तो सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों का फाइबर लॉस हो जाएगा। तो उसमें हम मान के चलते हैं, सपोज सोल्यूबल कंपोनेंट का फाइबर लॉस हम मान के चलते Y हो गया, और इनसोल्यूबल का Z, इनसोल्यूबल का Z। इसमें तो चलो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सोल्यूबल कंपोनेंट का Y हो गया और इनसोल्यूबल का Z हो गया लॉस फाइबर का, इन ग्राम्स, राइट। तो अब यहाँ पे इस लॉस को अपने को क्या करना है, कंसिडर करना है। तो हम बोल सकते हैं कि इनसोल्यूबल का लॉस टोटल हो गया RZ, इनसोल्यूबल का लॉस क्या हो गया RZ, क्योंकि रेसिड्यू R था, रेसिड्यू R था और उसका लॉस है Z, तो RZ वो क्या हो गया, करेक्टेड मास हो गया, RZ क्या हो गया, करेक्टेड मास फॉर रेसिड्यू। नाउ करेक्टेड मास फॉर सोल्यूबल कंपोनेंट आपको निकालना है। तो सोल्यूबल कंपोनेंट का करेक्टेड मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास W है, टोटल मास क्या है आपका W है, माइनस R मतलब रेसिड्यू, टोटल मास W था माइनस जो बचा हुआ वो है, ये बन गया, क्या बन गया अपना, सोल्यूबल बन गया, ये सोल्यूबल बन गया। और इसका लॉस कितना है, इसका फाइबर लॉस कितना है Y, इसका फाइबर लॉस कितना है Y, सो W माइनस R इंटू Y, W माइनस R इंटू Y, ठीक है। W माइनस R क्यों आ गया, क्योंकि टोटल मास W है आपका, उसमें से बचा हुआ था रेसिड्यू, तो उसको अगर माइनस किया तो कौन बन जाएगा, सोल्यूबल वाला बन जाएगा। अब एक टोटल मिला के W माइनस R सोल्यूबल बन गया, और उसका लॉस कितना हो रहा है फाइबर का, Y हो रहा है ना, उसका लॉस कितना हो रहा है, Y हो रहा है, एक्चुअली वो करेक्शन फैक्टर है Y, तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए W माइनस R इंटू Y, ये हो गया सोल्यूबल का, ये हो गया इनसोल्यूबल का, ये हो गया इनसोल्यूबल का। अब हम निकालते हैं, कैसे निकालना है परसेंटेज लॉस कंसिडर करके। अब मान के चलो अपना फॉर्मूला क्या था, R बाय W इंटू 100, R बाय W इंटू 100 था, राइट। अब लेते हैं R का क्या था,
करेक्शन फैक्टर RZ है ना, RZ इंटू 100 इंटू 100 तो कॉमन है, ये परसेंटेज का है। अब यहाँ पे W है, टोटल मास है। टोटल मास मतलब क्या, सोल्यूबल प्लस इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे सोल्यूबल प्लस इनसोल्यूबल लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं, सोल्यूबल था W माइनस R इंटू Y प्लस RZ प्लस RZ। ये W हो गया अपना, ये W हो गया। W मतलब दोनों है, रेसिड्यू भी है, सोल्यूबल भी है, दोनों दिया। अब देखो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, RZ ऊपर भी दिख रहा है, RZ नीचे भी दिख रहा है। तो डिवाइडिंग RZ at numerator also, at denominator also. So RZ by RZ into 100 divided by W minus R to Y divided by RZ plus RZ by RZ, राइट। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, ये RZ चला जाएगा, ये भी RZ चला जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, खाली 100। मैं ये चीज़ प्रूव कर रहा हूँ, अगर आप सोच रहे क्या कर रहे, तो आई एम प्रूविंग दिस, राइट। 100 डिवाइडेड बाय Y by RZ into bracket W minus R plus 1, ठीक है, प्लस 1। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको बताओ। इस R को अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि इधर एक R दिख रहा है, ठीक है। Y by Z into bracket W by R minus R by R। ये मैथमेटिक्स है, इसके थोड़ा सा बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए मैथ्स के, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा। क्योंकि इसको अंदर लेके जाते हैं तो कैसे बनता है वो, W माइनस R बाय R ऐसे बनता है। अगर मैथमेटिक्स टर्म में ऐसा है तो ये R हम दोनों को दे सकते हैं, W बाय R माइनस R बाय R, इसलिए वो अंदर ऐसे आ गया। तो ए आर चला जाएगा। सो हियर 100 डिवाइडेड बाय Y by Z into bracket W by R minus 1 plus 1, okay। So this is your P1। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो 100 डिवाइड बाय Y by Z into W by R minus 1 plus 1। So this is P1। P1 means your insoluble component, insoluble component, by considering what, by considering the losses of fiber, by considering the fiber loss, by considering the fiber loss, okay। now अब यहाँ पे फाइबर लॉस कंसिडर किया। अब इसमें सोल्यूबल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, फिर से सिंपल है। सोल्यूबल कंपोनेंट निकालना है तो 100 माइनस P1, 100 माइनस P1 ये बन गया आपका सोल्यूबल, 100 माइनस P1 ये बन गया सोल्यूबल। अब यहाँ पे और एक चीज होता है, जब आप प्री ट्रीटमेंट कर रहे हो, है ना, मतलब जब आप सॉल्वेंट में आप फाइबर को डाल दिया तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वहां पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है। जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है तब एज
यू आर यूजिंग केमिकल्स देयर, थोड़ा अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल फाइबर का भी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, थोड़ा अमाउंट इनसोल्यूबल कंपाउंड का भी लॉस हो जाता है, तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसका भी करेक्शन फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, इसका भी करेक्शन फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि वो करेक्शन क्या है, डी है, स्मॉल डी, वो करेक्शन क्या है, स्मॉल डी। तो उस मेथड से अपने को पी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने पी निकाला, पी इज इक्वल टू 100, सेम है, सब सेम रहेगा, खाली यहाँ पे डी आर आ जाएगा, क्योंकि रेसिड्यू को क्या हो रहा है, रेसिड्यू को थोड़ा सा लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो इसलिए इस आर का करेक्शन आ गया डी, सो डी आर इज द करेक्शन गिवन टू दिस रेसिड्यू, राइट। तो यहाँ पे डी आर आ गया, पूरा फॉर्मूला सेम ही है, खाली आर को मल्टीप्लाई बाय डी करने का, इसका मतलब क्या हो गया कि वो फैक्टर भी हमने कंसिडर कर दिया कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है तब आपका जो इनसोल्यूबल कंपोनेंट का फाइबर लॉस जो हो रहा है उसको भी हमने इसमें कंसिडर किया कैलकुलेशंस में, ठीक है। अब सपोज कि हमने रीगेन वैल्यूज दिया है, क्योंकि रीगेन तो है, फाइबर है तो रीगेन करेगा मॉइस्चर, या तो लेगा या तो देगा, जनरली लेगा, राइट। तो एटमॉस्फेयर से जनरली वो लेगा, अगर बहुत ही ड्राई एटमॉस्फेयर है तो वो देगा, अदरवाइज वो लेगा ही, ठीक है। तो रीगेन को भी कंसिडर करना पड़ता है ड्यूरिंग वेट कैलकुलेशन, क्योंकि वेट कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है रीगेन का, राइट। आपने यान कंडीशनिंग पढ़ा होगा, क्यों रीगेन का इंपॉर्टेंस है, यान कंडीशनिंग में उस पॉइंट में आपको उसका अंदाजा आ चुका होगा। स्पिनर्स जनरली कंडीशन करके ही देते, कंडीशन का एक्चुअली एम अलग है, बट यहाँ पे कुछ स्पिनर्स वेट बढ़ाने के लिए भी करते हैं, तो रीगन को कंसिडर करना पड़ता है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द वेट। तो मान के चलते हैं कि हम A% एंड B% रीगेन वैल्यूज है, राइट। A% एंड B% हम रीगेन वैल्यूज यहाँ पे हम लेके चलते हैं, राइट। सो A% will be the regain percentage for the soluble component we can consider, and B will be the regain percentage for the insoluble component। तो insoluble को B लेके चलेंगे हम, ये B, और soluble को A लेके चलेंगे। तो हम अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो दिस विल बी द फॉर्मूला, इनसोल्यूबल डिवाइडेड बाय W रहता है ना, W मतलब क्या है, सोल्यूबल प्लस इनसोल्यूबल, सोल्यूबल प्लस इनसोल्यूबल, सॉरी इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल प्लस ये पूरा क्वांटिटी सोल्यूबल, सोल्यूबल, ठीक है। तो इनसोल्यूबल का रीगेन यहाँ पे है B, 1 + B/100, ये रीगेन लिखने का तरीका है, टेस्टिंग में हमने देखा ये 1 + B/100, right, 100p into, because this is insoluble into 1 + B/100, that is your regain percentage, divided by again insoluble, मतलब सेम क्वांटिटी आएगा जो ऊपर था सेम आएगा, प्लस सोल्यूबल, सोल्यूबल कैसा रहता है, 100 - p रहता है, तो 100 - p यहाँ पे है, और उसका रिगेन परसेंटेज हमने लिया है 1 + A/100। तो ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, अभी टाइम चला जाएगा इसमें, और ठीक है ना। तो ये कैसे आ गया, ये सिंपल है, ये देखो इनसोल्यूबल डिवाइडेड बाय W है, वही सिंपल यूज किया है मेथड, इंटू 100, आप खाली पीली कंफ्यूज हो जाते हो। इनसोल्यूबल डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, ये टोटल वेट मतलब क्या है, टोटल वेट मतलब क्या है, टोटल वेट मतलब क्या है, R प्लस हम इसको क्या बोल देंगे, अभी क्या पीछे यूज किया था हमने इसको, क्या उसको सोल्यूबल को हम y बोल देते हैं यहाँ पे, चलो सोल्यूबल को हम y बोल देते हैं, R + y, मतलब ये R + y मतलब क्या हो गया, W हो गए, R + y, इनसोल्यूबल प्लस सोल्यूबल, ठीक है।
तो इसको अगर आप रेसिड्यू को आप क्या कर रहे हो, ये R मतलब क्या है, यहाँ पे P है, P है 100P इंटू उसका हम क्या करेंगे, रीगेन ले लेंगे, उसका रीगेन है B% डिवाइडेड बाय सेम R का मतलब ये सेम यहाँ पे आ गया, सेम यहाँ पे आ गया, प्लस ये मैं लिखता नहीं, सेम यहाँ पे आ गया, प्लस सोल्यूबल मतलब क्या रहता है 100 माइनस, मतलब यहाँ पे ये क्या है 100 माइनस R है, तो 100 माइनस P और उसका रीगेन क्या है A% है, उसका रीगेन है A%, तो ये लिखते समय ऐसे लिखते हैं 1 प्लस A बाय 100। आपने वो टेस्टिंग में ऐसा पढ़ा होगा 1 प्लस R बाय 100, ऐसा लिया होगा आपने टेस्टिंग में 1 प्लस R बाय 100, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, तो ये फॉर्मूला भी लिख के लो आप, P डैश इज इक्वल टू, P डैश मतलब इनसोल्यूबल कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं 100P इंटू 1 प्लस B बाय 100 डिवाइडेड बाय P 1 प्लस B बाय 100 प्लस 100 माइनस P 1 प्लस A बाय 100। और सोल्यूबल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, सोल्यूबल कंपोनेंट यहाँ पे 100 माइनस P डैश, 100 माइनस P डैश, 100 माइनस P डैश, तो इससे सोल्यूबल कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो राइट डाउन दिस एग्जांपल, राइट डाउन दिस एग्जांपल। या तो स्क्रीनशॉट मारो इसका, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट मार दो। A blend has been found to be composed of cotton and terline, and that the solvent chosen is 75% sulfuric acid in order to dissolve cotton. तो यहाँ पे हम कॉटन डिजोल्व कर रहे हैं। आफ्टर द ट्रीटमेंट इन लाइट पेट्रोलियम द सैंपल हैज अ ड्राई मास ऑफ 480 मिलीग्राम। द मास ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब कौन है, टेरलिन, इन ओवन ड्राई कंडीशन इज 156 मिलीग्राम। द ब्लेंड परसेंट वैल्यूज, ओके, कैलकुलेट द ब्लेंड परसेंटेज वैल्यूज, कैलकुलेट द ब्लेंड परसेंटेज वैल्यूज। और उन्होंने यहाँ पे सब चीजें दिए हैं, गिवन क्या दिया है, जेड मतलब वो लॉस जो हो रहा है कितना हो रहा है, इसका रेसिड्यू का 1.02, y का कितना हो रहा है मतलब सोल्यूबल का 1.06, d कितना हो रहा है मतलब ट्रीटमेंट करते समय इन सोल्यूबल का कितना हो रहा है 1, मॉइस्चर रिगेन कितना है कॉटन का 8.5, मॉइस्चर रिगेन टेरलिन का है 0.4। अब वो चारों फॉर्मूला यूज करके आपको ब्लेंड प्रोपोर्शन निकालना है। कभी कभी आपको एग्जाम में ना ये ऐसा देते हैं, ये जेड देते हैं 2% देते हैं और y देते हैं 6%, कौन सा भी वैल्यू रहेगा वहां पे 3% 2% जो भी है, तो इस तरीके से देते हैं। तो इसको निकालना कैसे है, 1.02 कैसे आ गया, 1.02 कैसे आ गया वो, तो आप जनरली उसको 100 प्लस 2 डिवाइड बाय 100, 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से करना पड़ता है वो। वैसे रिगेन जैसा ही कंसेप्ट है इसका भी। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1.02 आएगा और इसका 1.06 आएगा, यहाँ पे 6 लोगे तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये वैल्यू लिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इस तरीके में। ओके ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपसे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे इसको। अटेंडेंस, just hold, I will take the attendance, I will download the attendance। चलो ठीक है, मैंने डाउनलोड कर दिया है। ओके बाय, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।